Okay, we have started. Hello, everybody. All right, let's see what's happening. Okay, hi, hello, everybody. Welcome to the class. Hey, how are you all doing? Okay, chalo. बिफोर गोइंग अवे जैसा कि हमारा रिचुअल है हमेशा का लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास टुडे all right so hello everybody welcome to India's largest online learning platform, and we are here with on the YouTube channel of an academy. All right, we are here with our CBSE class 8th portal. And before going further, let me first introduce myself. Hi there, I'm Madhu. I'm Masters in English and I've done my B.Ed. I have 4 years of teaching experience and I have also qualified my CTET exam. Now, I am here to make English learning fun for you. And when I say fun, obviously, it's a language and it should be fun. It's no more a subject, it's just a language. So, yes, it should be fun. All right, chalo. Now, where can you find us? Yeah, you can find us on the An Academy app. You can download it up. डाउनलोड कीजिए. ओके, फर्स्ट देन आपसे एक कोड पूछा जाएगा. आप वो कोड आंसर कीजिए MADHU मधु. प्लीज यूज माय रेफरल कोड MADHU मधु एंड उसके बाद यू कैन अनलॉक ऑल योर फ्री कंटेंट. ऑलराइट, चलो लेट्स गेट ऑन. इसके अलावा if you want to connect us more, then please do connect us through the Telegram app. Link is also provided in the description box below. All right, you can join us from there as well. All right, chalo. Now, if you decide to take for the plus subscription, let me tell you it will be very beneficial for you. कैसे? अरे भाई लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको. ठीक है, यू विल गेट वीकली क्विज, यू विल गेट डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यू विल गेट प्रैक्टिस सेशंस एंड यू विल गेट टेस्ट सीरीज एज वेल. इसके अलावा व्हाट यू गेट इज द ईज एंड कंफर्ट ऑफ योर होम. ठीक है, घर में बैठिए आराम से, नो प्रॉब्लम टू गो आउट. आराम से घर में बैठिए और पढ़िए. ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी वन चैप्टर इन अ डे, मोस्ट वेलकम. सॉरी. अगर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं एक दिन में, देन यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट एज वेल. ठीक है, एंड एट सम टाइम्स इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, यू जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट एज वेल. बट नेक्स्ट डे you have to complete that. Okay, चलो next. We have unlimited access to all your courses. In class 8th, when you enroll, you have around 7 subjects. All right, and in those 7 subjects we have videos for all those 7 subjects. All right, and those videos will be accessible to you with only one subscription. All right, you don't have to take any other subscription. It will be accessible for you for only one subscription. Okay, एक subscription and that's it. You can access all the videos related to your course. Okay, then we have top educators, we have exhaustive coverage of the syllabus, we have regular doubt solving sessions, we have live test series, we have study material that will be provided to you in the PDF format, we have answer writing sessions, and we have mentorship and guidance. In exhaustive coverage of the syllabus, we cover the syllabus at least 3 or 4 times. Okay, मतलब जब तक आप एग्जाम में बैठने जाओगे ना, तब तक आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होगा. प्लस आपको बैठ के याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस रिविजन में ही आप याद भी कर लोगे. ऑल राइट, आफ्टर दैट we have daily test series.
Okay, this is actually a free content. You can use my code MADHU Madhu, and you can access all the free content using this code. You just have to download the app. Okay, download the Unacademy app and then here use my code, that is MADHU Madhu, and then you can very well access all your free content. All right. Not only this, but we have free special live classes as well for 6th, 7th, and 8th. I also take a live class every day at 11:10 a.m. on the Unacademy app. All right, I take of English, obviously, you know, and that also of English grammar. ठीक है, complete grammar होती है on the Unacademy app special classes के अंदर. So please do consider joining. All right, चलो. Then now, if you decide to go for the plus, then if you decide to go for the iconic, then what you get in plus, you also get an iconic. But then what you get is personal mentor. Okay, 24 by 7, a teacher will be available to you. All right, then you have life doubt solution. Life doubt solution ke andar you always get live doubts of your solutions are always given. ठीक है, suppose आपको उसी वक्त अगर नहीं समझ में आया, you can always ask again. All right, then we have parent connect. Parent connect के अंदर it's just like a PTM. All right, suppose you want to convey something to your educator, you can always say to your parents कि भाई मुझे इसका ये चीज समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज बोलो, I'm a little hesitant. So you can always do that. All right, then you have study planner. Okay, we have study planner. Study planner में क्या आता है? It's basically a timetable. ऑल राइट, टाइम टेबल में व्हाट यू गेट इज, जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, वैसे ही द टाइम टेबल विल बी ऑलरेडी मेड फॉर यू. ओके, आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. ऑल राइट, नाउ लेट्स गो ऑन, एंड टुडे वी विल बी डूइंग Honeydew Chapter 8, a short monsoon summary. Sorry, a short monsoon diary. Okay, itni sardi hai na, my goodness, that everything is actually freezing at this point. So that's why my tongue is also a little bit freezing and ekdam se slip ho gayi. ठीक है, चलो, let's go on and let's start the reading. Please focus on the pronunciation. All right, always focus on the pronunciation because that is very very important. All right, chalo, let's move on and let's go. Okay, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly, still as thought it were midnight. Now, फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून मिस्ट क्या होती है? बेसिकली जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, दैट उस टाइम पे क्या हो जाता है कि मॉनसून बारिश के बाद में एक हल्की सी धुंध सी रहती है ना, एक हल्का सा फॉग सा है, हमें ऐसा फील होता है जैसे हल्का सा फॉग है, बट वो फॉग नहीं होता है, उसे बेसिकली हम मिस्ट कहते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून मिस्ट, एंड द नरेटर सेज कि मॉनसून मिस्ट का पहला दिन है. ऑलराइट, एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड फॉल साइलेंट. मतलब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि बर्ड्स जो कि कभी भी चुप नहीं होती हैं, वो कैसे अचानक से मॉनसून मिस्ट का जो पहला दिन होता है उसमें वो अचानक से इतनी साइलेंट हो गई हैं. और मॉनसून का जो मिस्ट है, जो वो धुआं सा जो हमें नजर आता है, वो हिल्स पे भी चढ़ रहा है. ऑलराइट, शायद इसीलिए सब कुछ ऐसा हल्का सा थोड़ा सैडनेस सा फील हो रहा है. ऑलराइट,
नाउ सिर्फ 1 घंटा पहले जो ट्रीज थे वो भरे हुए थे बर्ड सॉन्ग से, मतलब बर्ड्स ची टू टू टी टू टू कर रही थी। ऑलराइट, सो द ट्रीज वर एक्चुअली फिल्ड विद बर्ड सॉन्ग्स सिर्फ 1 घंटा पहले, और अभी देयर इज नथिंग। ऑलराइट, एंड अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, और फॉरेस्ट में क्या है, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब कुछ भी, कोई भी आवाज नहीं हो रही है। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है जैसे ना आधी रात हो गई और सब कुछ एकदम साइलेंस हो जाता है, कैसे एकदम शांत हो जाता है जब इट्स अराउंड 1 or 2 in the night। तो सेम इज बीइंग फेल्ट, ठीक है ना। Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. इसी मिस्ट के में से निकलता हुआ बिज्जू वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है, ठीक है। द नरेटर सेज कि मैं उसको भागता हुआ मैं उसे सुन सकता हूँ, ओके, आई कैन हेयर हिज फुटस्टेप्स, लेकिन वो मतलब मैं उसे देख नहीं सकता। ऑलराइट, मैं सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, ठीक है। नाउ ये जून 24 की बात थी, ये जो पहला था ये जून 24 की बात थी, ठीक है। अब जो बात होगी वो जून 25 की होगी। ऑलराइट, एंड ऑल्सो आई एम अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। तो वट एवर योर क्वेरीज आर, आप फटाफट से टाइप कर दीजिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, नाउ some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold, high altitude stuff we have having all year. Now, ये तो बहुत ही मतलब genuine अर्ली मॉनसून की जो बारिश थी वो थी 25 जून को। थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा चिपचिपा सा, और ज्यादा सर्दी भी नहीं थी, ओके। और ऐसा तो पूरा साल ही रहता है, द नरेटर इज सेइंग, ऑलराइट। देन द plant seemed to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the coast. हाँ, वो कह रहे हैं कि शायद प्लांट्स को भी ऐसा पता है, इसीलिए जो फर्स्ट कोबरा लिली है, कोबरा लिली बेसिकली इज अ प्लांट्स नेम, वो फर्न से बाहर निकल रही है जैसे ही नरेटर अपने बैंक और पोस्ट जैसे ही नरेटर बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है। नाउ हेयर फर्न्स इज बेसिकली अ प्लांट, ठीक है। कोबरा लिली एंड फर्न्स बोथ आर प्लांट नेम, ऑलराइट। चलो, the mist affords a certain privacy. A schoolboy asked. Now, mist क्या होता है? It affords a certain privacy. मतलब मिस्ट में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही अकेला चल रहा हूँ और कोई है नहीं, बिकॉज आसपास आपकी धुंध होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ। सो इट्स बेसिकली affords you a little privacy. All right, now a schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. अच्छा, एक स्कूल बॉय ने नरेटर को कहा कि आप प्लीज हिल स्टेशन और वैली को सिर्फ एक सेंटेंस में बताइए, ओके। तो नरेटर ने क्या कहा, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब उन्होंने कहा कि एक ऐसी जन्नत जो शायद कभी होगी। ऑलराइट, दैट इज हिल स्टेशन एंड वैली फॉर द नरेटर। ऑलराइट, हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। I don't know whether you have been or not, but yes, I have been to the mountains during the मॉनसून सीजन। और मॉनसून में ऐसा लगता है जैसे इट इज मतलब आप एक अलग ही जगह पे आ गए हो। फर्स्टली हेयर ऑल्सो इन इन मेट्रो सिटीज ऑल्सो सब कुछ बहुत ज्यादा प्योर लगता है, राइट। एंड द सेम हैपेंस इन माउंटेन्स एज वेल। वहां पे भी एवरीथिंग फील्स जस्ट एब्सोल्यूट प्योर। ऑलराइट, और मतलब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम साफ हो गया है, एंड इट्स एक्स्ट्रा प्योरिटी वहां पे फील होती है। इट्स वेरी गुड, यू शुड विजिट। बहुत सही रहता है। हालांकि इन मॉनसून्स रास्ता थोड़ा सा बेकार हो जाता है एक्चुअली समटाइम्स यू जस्ट गेट स्टक, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली यू शुड गो, ओके। चलो, नाउ जून 7, अभी तक हमने 2 दिन का देखा, जून 24 एंड जून 27, सॉरी जून 25, और अब हम देख रहे हैं जून 27 का।
The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Now, the rains have heralded, मतलब रेन्स जो बारिशें हैं वो अपने साथ ले आई हैं क्या, एक लेपर्ड और बहुत सारी लीच इफ यू नो इट्स एक्चुअली दिस दिस या मतलब लगभग इतना ही एक इट्स काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है जो आपके यहाँ पे चिपक जाएगा एंड यू नो आप उसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू उसको निकालना, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्या होता है कि वो चिपक जाता है एंड इट जस्ट स्टार्ट सकिंग योर ब्लड। तो जब वो ब्लड सक करता है तो इट एक्चुअली बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, तो इसके लिए वी से कि थोड़ा बच के रहना चाहिए। So this is actually a thing कि हाँ monsoons में it becomes a little difficult that way as well. All right, chalo. Now, mm, yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. वो कह रही हैं कि कल ही लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया था फ्रॉम द सर्वेंट्स क्वार्टर जो स्कूल के नीचे हैं वहां से। In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. Now, वो कहते हैं वो कह रहे हैं कि शाम को ही उस लेपर्ड ने बिज्जू की एक काव पे हमला कर दिया था, लेकिन वो तो अच्छा है कि उसकी मम्मा आ गई। सो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग फॉर हेल्प और इसीलिए वो लेपर्ड शोर सुन के he just ran away. All right. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और वो कहते हैं कि leeches का तो ऐसा है कि leeches you actually can't you know आप उनका कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। ही जस्ट सेज कि उनके लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ बस मुझे थोड़ा सा ना हर रोज थोड़ा थोड़ा खून कहीं से निकलता हुआ मुझे उसकी आदत डाल देनी चाहिए। ओके नाउ कहाँ गए बे मेरा तो wait. Oh yeah, I just forgot. Okay, other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow. Okay, scarlet minivets. It's a plant's name. ठीक है, ये एक और monsoon की देन है scarlet minivets, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. वो कहते हैं मॉनसून की एक और जो गिफ्ट है मॉनसून का वो है स्कारलेट मिनिविट्स। ये बेसिकली है, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही सुंदर जूल है, मतलब बहुत ही सुंदर ज्वेलरी का पीस है। ऑलराइट, वो मेरा पॉइंटर ही हमेशा गायब हो जाता है, व्हाई इज इट हैपनिंग? चलो, no matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. ये कहते हैं कि पेड़ की पत्तियां कितनी ही हरी क्यों ना हो, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल जो बर्ड्स जो आई हैं बाहर से, ये इन बर्ड्स अपने आप को छुपा ही नहीं पाती हैं और ये ऐसे नजर आती हैं लाइक दे, मतलब यू जस्ट कांट गेट अननोटिस। मतलब अगर आपकी नजर गई आप इधर उधर भी देख रहे हो तो भी आपकी नजर उन पे जाएगी ही जाएगी, यू हैव टू नोटिस देम। ऑलराइट, चलो। Along come a pair of drongos, unnecessary aggressive, chasing the minivets away. अच्छा, अभी drongos is an animal, वो है और they are aggressively chasing the minivets. All right. A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. All right. ये कह रहे हैं कि अब ट्री क्रीपर्स ओके जो है वो रैपिडली चल रहे हैं। ट्री क्रीपर्स मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉरी ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि एक दूसरे के पेड़ के ऊपर, मतलब दूसरे पेड़ के ऊपर ही चढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ट्री क्रीपर्स हैं वो किसी ओक के पेड़ पे चढ़ रहे हैं, मीन्स वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो चढ़ रहे हैं। ओके, और उनकी वजह से जो भी इंसेक्ट्स हैं ऐसा लग रहा है कि वो हर इंसेक्ट को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, और अब
क्योंकि इंसेक्ट रेन्स आ गई हैं, तो फिर जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स मीन्स जो इंसेक्ट खाने वाली जो बर्ड्स हैं, उनके लिए भी फूड की कोई कमी नहीं है। ऑलराइट, नाउ होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम, इफ एनी कंफ्यूजन, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है? ऑल राइट, चलो, कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू? बिजू को क्यों नहीं देख पाता है ऑथर, बताइए? टेल मी क्विकली, आई एम गिविंग यू अ मिनट। ओके, आई एम गिविंग यू अ मिनट, टेल मी क्विकली, ऑथर क्यों नहीं देख पा रहा है बिजू को? ऑल राइट, a minute, a minute. क्यों नहीं देख पा रहा है? It's a very simple. The author is not able to see Biju because of the mist. Because वहां पे इतनी धुंध है, इतना मिस्ट है कि ऑथर बिजू को नहीं देख पा रहा है. Now the next one. What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? Okay, what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि हिल्स चेंज हो गई हैं? Okay, okay. Firstly, the two ways. Firstly, the hills get concealed. The hills get concealed by mist. ठीक है? And साइलेंस हो जाती है. ठीक है? The hills are silent. All right, the hills are silent. Chalo. Now let's go on. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. Now, narrator कह रहा है कि पूरी रात कॉरुगेटेड टिन रूफ, मतलब वो छत पे वो टिन टीन पड़ी हुई है, तो उससे ऐसा लगता है कि बारिश ड्रम बजा रही है. ओके, बारिश ड्रमिंग कर रही है. एंड कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, सिर्फ सीधी बारिश पड़ रही है. ये एक्चुअली मुझे जगा भी रही है और मतलब मुझे सुला भी रही है. ऑलराइट, now, it is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. Now, the narrator is in very good mood, ठीक है? और narrator कह रहे हैं कि ये इतना अच्छा टाइम है पढ़ने का, ओके, टू रीड बाय. तो वो कह रहे हैं कि बारिश, बाहर बारिश हो रही है, अंदर शांति है, टिन की रूफ है जो कहीं कहीं से टपक रही है, तो एक्चुअली आपको बारिश से दूर भी रख रही है और बारिश के पास भी रख रही है. अब दूर कैसे रख रही है? डायरेक्टली बारिश आपके ऊपर नहीं पड़ रही है, तो भाई वो दूर रख रही है. और पास कैसे रख रही है? कि वो जो छोटी छोटी सी बूंदे जो मतलब कभी कभार टपक रही है, आपको बता रही है कि भाई हाँ, बाहर बारिश हो रही है. ठीक है, चलो. अब August 3rd की बात है. The rain stops. The clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the twinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe. And suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. अच्छा, अभी August 3rd को बारिश बंद हो गई है. फाइनली बंद हो गई है. ठीक है, चलो. एंड जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो टूट रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग अप. और सन सडनली से आ रहा है फ्रॉम द नरेटर्स लेफ्ट साइड. ठीक है,
एक जो लेडी है वो लकड़ियां काट रही हैं, ऑलराइट। नरेटर को जो गाय के गले में जो घंटियां बजती बंधी रहती हैं उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। एक दूर एक ओक ट्री पे जो क्रो है, कौवा वहां बैठ के अपने फेदर्स से रेन ड्रॉप्स को हटा रहा है। देन वाटर टपक रहा है फ्रॉम द ड्रेनिंग पाइप। होता है ना जब बारिश आती है उसके बाद भी जो छत पे से जो पानी वाला जो पाइप होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, तो सेम इज हैपनिंग विद द नरेटर एज वेल। ठीक है, चलो। देन सडनली वो कहते हैं कि एक क्लीन प्योर ऐसा लग रहा है जैसे सॉन्ग बज रहा है। ठीक है, एक क्लीन और प्योर, बिकॉज बारिश के बाद कैसा होता है कि सब कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने पानी डाल के धो दिया है सब कुछ, एक्चुअली में फील होता है। ओके, अभी जब विंटर्स आए, सॉरी, अभी जब कभी मॉनसून विंटर्स में भी बारिश होती है, उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि जैसे सब कुछ धो दिया है किसी ने। ऑलराइट, चलो ना, अब अगस्त 12 की बात है। ठीक है, अभी अगस्त 3 पे थे हम, अभी हम डायरेक्टली अगस्त 12 पे पहुंच गए हैं। ऑलराइट, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, everything damp and soggy, nowhere to go, pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. Now अब नरेटर कह रहे हैं कि एंडलेस रेन मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, और परमानेंट मिस्ट जो धुंध है वो भी परमानेंट ही हो गई है। हमने सूरज नहीं देखा पिछले 8 या 9 दिन से। ऑलराइट, सब कुछ गीला है, ऐसा लग रहा है हर किसी में पानी भरा हुआ है। ऑलराइट, एंड कोई जगह नहीं है जाने के लिए, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप सिर्फ अपने कमरे में रहिए और बाहर से आप सिर्फ देखते रहिए कि कुछ लोग कुछ अम्ब्रेलाज इधर उधर जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको लोग तो दिख नहीं रहे, ऊपर से तो सिर्फ अम्ब्रेलाज ही दिखेंगे, इसीलिए नरेटर कह रहे हैं कि कुछ अम्ब्रेलाज इधर उधर जा रही हैं। ऑलराइट, चलो, एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड। ओके, वो कह रहे हैं कि चलो शुक्र है कम से कम सर्दी तो नहीं है। ऑलराइट, रेन, इट इजंट, yeah, at least it isn't cold rain. Okay, the hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias, and ground orchids. Orchids. Now, or you can say orchids. Okay, basically it's pronounced as orchids. Okay. Now, H is एच इज साइलेंट। ठीक है, सिर्फ ऑर्किड्स कहते हैं। ऑलराइट, नाउ वो कहते हैं कि चलो बारिश तो अभी नहीं है, हर जगह से जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम हो रहे हैं। ओके, अलग 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 तरीके के हैं, वाइल्ड बाल्सम है, डाहिलाज हैं, बिगोनियाज हैं, और ग्राउंड ऑर्किड्स भी हैं। ऑलराइट, नाउ अगेन अब हम अगस्त 31 पे पहुंच गए हैं, लास्ट डे ऑफ अगस्त। इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। The seeds of the cobra lily are turning red. Okay, वो कह रहे हैं कि अब लास्ट डे मॉनसून का है, जो अगस्त का है, और जो मॉनसून की जो ग्रोथ होती है वो एकदम अपने पीक पे है, मतलब हाईएस्ट ग्रोथ है इस टाइम पे। और जो कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो भी एकदम रेड हो रहे हैं। ओके, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। वो क्या, उनका रेड होना क्या सिग्निफाई करता है कि जो बारिशें हैं वो अब कम होने जा रही हैं। ऑलराइट, okay, in a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm green and upright. Fern, as I told you, plants हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ferns जो है वो हल्के से पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी दे आर एब्सोल्युटली अपराइट, मतलब एकदम सही है, बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। ऑलराइट, नाउ ग्राउंड ऑर्किड्स, mauve lady slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Lander. Now, अब वो कह रहे हैं, अब वो क्या बता रहे हैं कि अलग अलग फूलों के और पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। द ग्राउंड ऑर्किड, द मॉव लेडी स्लिपर और व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स। ठीक है, ये तीनों
नाम है फ्लावर्स के, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक फैशन डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसको देखो तो ये भी अच्छा है, इसको देखो तो ये भी अच्छा है। तो नीचे की जमीन क्या है, वो ग्रासी है, तो इट्स ग्रीन, और ग्रीन के ऊपर ऑल दीज फ्लावर्स एंड डिफरेंट ट्रीज, दे आर एक्चुअली डूइंग अ फैशन display. All right. Now, while dahlias, red, yellow, and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. अब वो कह रहे हैं कि वाइल्ड डहिलास, रेड, येलो और मेजेंटा, ठीक है, ये सारे जो है वो अपने सर बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ से? जहां पे कि वो पहले छुपे हुए थे बारिश की वजह से, वहां से अब वो अपना सर बाहर निकाल रहे हैं। ऑल राइट। नाउ, snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. वो कह रहे हैं कि snakes और rodents कौन से होते हैं? चूहे और उनके जैसी दूसरी स्पीशीज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सब जो है वो बिकॉज उनके होल्स तो अब सारे पानी से भर गए, तो अब वो कहाँ जाएंगे? तो अब वो या तो किसी की छत पे चले गए, या छत पे जो एक छोटा सा स्पेस जो बना होता है उसमें चले गए, और कई अपने गोडाउन में चले गए ना। व्हाट इज एटिक? एटिक बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे मान लो हिली एरियाज में कैसे घर होते हैं, ऐसे स्लोप वाले घर होते हैं। तो ये जो स्पेस होता है, ठीक है, ये इस स्पेस के अंदर सामान वगैरह रखने की जगह होती है। ऑलराइट, तो उसको एटिक कहते हैं। ओके, नाउ डोंट किल इट, sorry, a shrew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. All right. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक कोई छोटा सा एक रोडेंट आ गया है, और बच्चे उसे देख के थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा इधर उधर भाग रहे हैं, थोड़ा शोर मचा रहे हैं। तो डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर क्या कह रही है? मारना मत। वो कह रहे हैं चुनचुंदर। चुनचुंदर मतलब चुचुंदर, आपने सुना होगा, या मदर्स माइट बी सेइंग, मैम ऐसे कहते हैं चुन 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 चुन, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आवाज निकालते हैं वो। ऑलराइट, तो उन ग्रैंडमदर क्या कहती हैं कि ये लकी होते हैं, ये दे ब्रिंग मनी। And sure enough, I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same. नरेटर कहते हैं कि हाँ, शायद इसीलिए मुझे एक चेक रिसीव हुआ है मेल में, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी लार्ज, मतलब उतने ज्यादा पैसे का नहीं है, बट स्टिल जो मिल जाए वही अच्छा है। सो नाउ October 3, all right, we have gone straight. Just 1 second. All right, okay. Yeah. एक छोटा सा सिप ऑफ वाटर। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? अगर आपके कोई डाउट्स है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। ऑल राइट, ओके, चलो। We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. वो कहते हैं कि हम मॉनसून की बारिश से सीधा हम विंटर्स की बारिश में पहुंच गए हैं। ऑल राइट, और जो और ज्यादा ऊंची जगह है वहां पे तो बर्फ भी पड़ रही है। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर suffused with a beautiful golden light. वो कहते हैं इवनिंग की एक बारिश के बाद स्काई और हिल, सूरज और हिल्स, ऐसा लगता है जैसे एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से भर गई है। ऑलराइट, नाउ January 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। वो सर्दियों की बारिश के बारे में बता रहे हैं जो कि हिली एरियाज में होती है। In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. नाउ, अब वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज्यादा साइलेंस है घर में, बिकॉज वो अकेले हैं, द नरेटर इज अलोन,
और जो उनके फ्रेंड हैं वो भी चले गए हैं, हु वाज हियर हैज गॉन। वो जो फ्रेंड थे वो चले गए हैं और अब नरेटर बिल्कुल अकेले हैं, चुप हैं और एकदम साइलेंट होकर बैठे बैठे हैं। उनके आसपास बारिश हो रही है, सो ही इज सेइंग कि रिदम ऑफ रेन मेरे आसपास है, और स्टेडी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ऑफ वाटर मतलब पत्तियों से पानी गिर रहा है। ऑलराइट, on leaves, on lemons, on roofs, drumming on drenched dahilas, मतलब जो बारिश का पानी है वो गिर रहा है कहाँ से? पत्तियों से, नींबू से, छत पे से, रूफ पे से, और जो डहिलास है, ड्रेंच डहिलास मतलब जो पहले से पानी में भीगे हुए हैं उनके ऊपर गिर रहा है। ऑलराइट, और साथ में विंडो पेन मतलब जो खिड़की पे जो जाली वगैरह लगी होती है उस पे भी है। ऑल राइट, वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयरस, लेकिन जो धुंध है उसने घर को एकदम ही डार्क उसमें रख लिया है। ओके, एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनन्स मी विद देयर लोनलीनेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैं विंडो के पास थोड़ा सा रुका, बारिश बंद हो गई और फिर से चालू हो गई। ओके, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, अब ट्रीज कैसे हैं? अब ट्रीज हरे नहीं है बल्कि ग्रे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी है, ओके, विंटर्स है, तो हल्का सा जो ग्रीन जो कलर है वो हल्का सा ग्रे में कन्वर्ट हो गया है। ओके, मेनिन्स मी विद देयर लोनलीनेस, और वो अपने जो शांति है उससे मुझे परेशान कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। मार्च में क्या होता है? विंटर्स एंड हो जाते हैं। So, the blackest cloud I have ever seen squatted over Missouri, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. वो कह रहे हैं कि एकदम काला बादल, और सबसे काला बादल जो मैंने देखा है वो अभी अभी मसूरी के ऊपर से गया है, और उसने इतने सारे मार्बल्स मीन्स ओले, ठीक है, यहाँ पे ओलों के लिए मार्बल यूज हुआ है। तो ही सेज कि उन्होंने इतने सारे ओले गिराए हैं लगभग आधे घंटे तक कि यू नो ओलों के अलावा मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता जो कि बारिश को, सॉरी, स्काई को साफ कर सके। वो कह रहे हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूँ उस टाइम भी मैं देख रहा हूँ कि एक रेनबो बन रहा है। ओके, एंड that's it. All right. This was written by Ruskin Bond. Now, अब आप लोगों में से जो नहीं जानते कि रस्किन बॉन्ड कौन है, तो प्लीज गिव मी दी अपॉर्चुनिटी टू टेल यू पीपल। ठीक है, सबसे बड़ी बात, रस्किन बॉन्ड, ऑल राइट, he is one of the, for me, he is the one of the greatest writers, especially for children. बच्चों की स्टोरीज वो इतनी अच्छी तरह से लिखते हैं, लाइक नोबडी एल्स कैन, स्पेशली जब वो अपने, बिकॉज नाउ ही इज फ्रॉम मसूरी, ऑल राइट, तो वो मसूरी से हैं, और जब वो अपने उस एरिया को, व्हेन ही एक्चुअली ही जस्ट वो एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन ही एक्सप्लेन्स, तो उस टाइम पे इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर जस्ट सिटिंग और सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लाइक इन दिस स्टोरी एज वेल। आपने देखा कि सब कुछ इतनी डिटेल में और इतना माइन्यूटली बताया गया है कि ऐसा सच में अगर आप आंख बंद करके इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो उस व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग, तो उस टाइम पे आप को सच में ये लगेगा कि द जो भी कुछ हो रहा है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तो इट्स एक्चुअली दैट क्रिएटिवली एक्सप्रेस्ड। साथ में रस्किन बॉन्ड की मैंने बुक पढ़ी थी, द रूम ऑन द रूफ, दैट वाज द फर्स्ट बुक दैट आई रेड ऑफ रस्किन बॉन्ड। बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, अगर आपको पढ़ना है, इफ यू अभी विंटर्स ब्रेक है तो इफ यू फील रीडिंग तो आप पढ़ सकते हैं।
The Room on the Roof. ओके, दिस इज बाय रस्किन बॉन्ड. आप प्लीज गो एंड रीड. थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना, आप बाकी का अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे. ऑलराइट, इट इज दैट गुड. बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है. ऑलराइट, चलो लेट्स एंड. क्योंकि अगर मैं रस्किन बॉन्ड के बारे में बोलने लग गई तो दिस विल नेवर स्टॉप. ही इज दैट गुड. आप बुक पढ़ोगे दिस वन, आपको अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स डू दी कॉम्प्रिहेंशन चेक. फिर से कर लेते हैं हम. नाउ, व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड? ओके, मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स इन अगस्त. अगस्त टू. कब एंड होता है? इट इज अगस्त टू अक्टूबर. ओके, मिड ऑफ अक्टूबर लगभग, तो अगस्त टू अक्टूबर. ऑलराइट, चलो. हम्म, या आप इसको जुलाई टू अक्टूबर भी कह सकते. ऑलराइट, चलो. हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून? भाई अब आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. ठीक है, और मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ वो मैं बता देती हूँ. आई प्रिपेयर, मैं सबसे पहले आई टेक आउट माई अम्ब्रेला. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अम्ब्रेला निकालो सबसे पहले, बिकॉज यू नेवर नो ऑफ द ट्रेन्स की वो कब आ जाएंगी. एंड ऑलवेज ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू ड्यूरिंग द मानसून सीजन. ठीक है, so that I do. I always carry my umbrella with me, और मैं सबसे पहले अपनी umbrella निकाल लेती हूँ. All right, चलो. Now the next one. Which hill station does the author describe in this diary entry? अच्छा, हिल स्टेशन कौन सा डिस्क्राइब हो रहा है? अभी अभी बात हुई थी, ये है मसूरी. ऑल राइट, कौन सा हिल स्टेशन है? मसूरी. क्या कोई गया है मसूरी? टेल मी. मैं कभी नहीं गई हूँ, ऑल्दो आई वुड लव टू विजिट, बट मैं गई नहीं हूँ कभी भी. कोई गया है मसूरी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. चलो. For how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? It rained around 8 to 9 days. ठीक है, कंटिन्यूअसली 8 से 9 दिन तक बारिश हुई थी ना. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. या यहाँ लिखा है वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. ओके, तो इसमें यू नो व्हाट डज द ऑथर डू? ऑथर इसके अंदर क्या करते हैं? ऑथर इज इन इट्स रूम. ओके, he sits in his room. ओके, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर जाने की कोई जगह नहीं है. बाहर सिर्फ अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला नजर आती है. ओके, चलो. वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई? अच्छा, ये भी पढ़ा था. स्नेक्स एंड रोडेंट्स कहाँ शेल्टर लेते हैं? दे टेक शेल्टर इन. कहाँ है? दे टेक शेल्टर. हाँ, ये मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया. दे टेक शेल्टर इन रूफ, एटिक्स एंड गोडाउन्स. ओके, कहाँ शेल्टर लेते हैं? रूफ, एटिक्स एंड गोडाउन. और क्यों शेल्टर लेते हैं? बिकॉज देयर holes are flooded out. Okay, because their holes are flooded out. Flooded out मतलब पानी से, फ्लड के पानी से भर गए हैं. ऑलराइट, इसीलिए वो शेल्टर लेते हैं. चलो. What did the author receive in the email? ऑथर को क्या रिसीव हुआ ईमेल में? He received a check. ओके, क्या रिसीव हुआ? एक चेक. All right, chalo, let's do the next one. Okay, look carefully at the diary entries of June 24 to 25, August 2, and March 23. Okay, now write down the changes that happen as the rain progress from June to March. अब कैसे progress होगी? सबसे पहले the trees convert from green to gray. ठीक है, ट्रीज का चेंजेस आप बताएंगे. दे कन्वर्ट फ्रॉम ग्रीन टू
ग्रे। उसके बाद में एनिमल्स का बताएंगे। ओके, अर्लियर एनिमल्स क्या थे, छुपे हुए थे व्हेन द मॉनसून वाज देयर, और फिर जैसे ही मॉनसून खत्म हुआ मार्च में, दे वर ऑल आउट। ठीक है, इसके बाद में यू विल टेल अबाउट अबाउट जो इंसेक्ट्स है। ठीक है, आप उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि बारिशों के टाइम पे सब गायब हो जाते हैं और जब बारिश बंद हो जाती है तब सब फिर से वापस आ जाते हैं। देन इसके बाद आप बताएंगे अबाउट द फ्लावर्स। ऑल राइट, कि बारिशों में सारे फ्लावर्स थोड़े छुपे हुए रहते हैं, और जैसे बारिश थोड़ी सी धीमी होती है, सब दे अगेन स्टार्ट ब्लूमिंग। ऑल राइट, चलो नाउ द नेक्स्ट वन। Why did the grandmother ask the children not to kill the चुचुंदर? ग्रैंडमदर ने क्यों बोला बच्चों को चुचुंदर को नहीं मारने के लिए? बिकॉज शी कंसिडर्ड इट लकी। ओके, शी कंसिडर्ड इट टू ब्रिंग वेल्थ। ठीक है, उनका मानना था कि चुचुंदर क्या लेके आते हैं? वेल्थ लेके आते हैं। ऑल राइट, चलो, what signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? नेचर में क्या साइंस है जिससे पता चलता है कि मॉनसून एंड होने वाला है? लेट्स सी, ये हमें मिलेगा। यस, द सीड्स ऑफ द कोबरा आर टर्निंग रेड। Hera. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. Okay, चलो, now next, ये तो fill in the blanks है। okay, फटाफट से इसके आंसर्स मुझे बताइए कमेंट सेक्शंस में, क्विकली। ओके, चलो, जब तक आप टाइप करते हैं तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, चलो, बिजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज of the mist. Okay, chalo. The writer describes the hill station and valley as the the mm, the heaven that has never been. Yeah, a paradise that might have been. Yes, a paradise that might have been. Okay, as para oops paradise that might have been. ओके, ऐसे जन्नत के रूप में उन्हें बताते हैं जैसे कि वो ऐसी जन्नत है जो कि शायद ही कभी होगी। ऑलराइट, द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन डैश। इन क्या ले जाने में सक्सेसफुल था वो? हम्म, okay, wait, I'm searching. uh, because I want to write the exact thing. So I know वो बिजू की काव को, या दिस वन, सी, सर्वेंट क्वार्टर, एक डॉग को ले जाने में सक्सेसफुल हुआ लेकिन बिजू की काव को नहीं ले जा पाया था। ऑलराइट, इन टेकिंग द डॉग बट हैड टू फ्ली व्हेन he tried for बिजूज काव। है ना, जब बिजू की काव को ले जाने के लिए आया था तो बिजू की जो मॉम थी वो चिल्लाने लगी थी, है ना, उन्होंने शोर मचा दिया था। सो ही हैड टू गो अवे। द मिनिविट्स आर इजिली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ देयर कलर। ओके, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटिफुल कलर, इसीलिए मिनिविट्स बहुत आसानी से दिखाई दे जाती है। All right, it looks like a fashion display on the slopes when the flowers bloom after rain, after rains. Okay,
चलो नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इज इट समथिंग दैट यू पीपल आर नॉट गेटिंग? देन प्लीज डू लेट मी नो। ऑलराइट, चलो। During the monsoon season, snakes and rodents are found in roofs and attics because क्यों मिलते हैं वो roofs of और attics पे? Because their holes are flooded. ठीक है भाई, उनके घर तो पानी में हो गए ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। दैट्स व्हाई दे टेक शेल्टर इन रूफ्स एंड एटिक्स, और गोडाउन्स में भी। ठीक है, सिर्फ रूफ्स और एटिक्स में नहीं होते, गोडाउन्स में भी होते हैं। सबसे ज्यादा चूहे मिलते हैं वहां पे, सबसे ज्यादा, और वो भी इतने इतने मोटे मोटे वाले। इतने छोटा सा कोई नहीं मिलेगा, इतने सारे इतने मोटे मोटे वाले मिलते हैं। चलो, although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being touched by and yet in untouched with the rain. Now, why has the narrator used the word springing? Springing, springing क्यों यूज किया है? बताओ कोई मुझे जरा। स्प्रिंगिंग क्यों यूज किया है? स्प्रिंगिंग इसलिए यूज किया है बिकॉज द लीक इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस पोर। ओके, leak is not continuous pour. Okay, it's drop by drop, drop by drop गिर रहा है। ठीक है, that's why it says that it's springing. How is the writer untouched by the rain? The writer is untouched by the rain because of the shelter of the tin. ठीक है, टिन एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, इसी वजह से जो राइटर है वो अनटच्ड है रेन से। ऑल राइट, नाउ हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? अब इन टच कैसे है? बिकॉज ऑफ द लीक, बिकॉज ऑफ द लीक। ऑल राइट, चलो। Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. All right, क्या हो सकता है when there are endless rains for together? क्या होता है? Everything is soggy, no place to go, water everywhere, and you see only umbrellas. तो सबसे important तो हम भूल ही गए थे, है? You see only umbrellas, सिर्फ umbrellas दिखाई देते हैं, इंसान नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलो। What is the significance of cobra lily in the relation to the monsoon season, its beginning and its end? In the beginning, okay, चलो। हम्म, ढूंढो ढूंढो, आप लोग भी ढूंढो एग्जैक्ट क्या होगा इसका। फटाफट से सर्च करेंगे हम। क्विकली सर्च करेंगे तो कोबरा लिली। हम्म, यस। सी, स्टार्ट में क्या है? जून 25 है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून सीजन है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून सीजन में क्या होगा? द कोबरा लिली rears इट हेड फ्रॉम द ferns। ठीक है, कोबरा लिली स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में क्या करती है? अपने फर्न्स बाहर निकालती है। ओके, अपना हेड बाहर निकाल रही है कोबरा लिली। कोबरा लिली क्या है? इट इज अ प्लांट। ओके, कुछ और नहीं समझ लेना, इट्स जस्ट अ प्लांट। ओके, और फिर एट द लास्ट क्या होता है? जब मॉनसून एंड होने वाला है, देन द सीड्स टर्न रेड। ऑल राइट, और विंटर्स में क्या होता है कोबरा लिली के साथ? बताओ जरा, विंटर्स में क्या होता है कोबरा लिली के साथ? इट जस्ट टर्न्स ग्रे। ऑलराइट, विंटर्स में इट टर्न्स ग्रे। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है? टेक्स आउट हेड, उसके बाद टर्न्स, सीड्स टर्न रेड।
and then turns from green to gray. ओके, समझ में आया? चलो, वर्किंग विद द लैंग्वेज. Okay, here are some words that are associated with the monsoon, and as many words as you can do this list. Can you find the word in these in your language? मतलब आप ढूंढ सकते हो. डाउनपोर को क्या कहते हैं? रिम झिम. Okay, in our language means this is English. I am a Hindi speaker as well, तो मैं अपनी language में ढूंढ रही हूँ. Okay, डाउनपोर को क्या कहते हैं? रिम झिम. फ्लड्स को बाढ़. मिस्ट को धुंध. क्लाउडी, क्लाउडी को क्या कहते हैं? क्लाउडी, बादल, बादल. ओके, ओके. पावर कट्स. बिजली चली गई. पावर कट्स. भाई हम तो यही कहते, तो हम तो यही बोलेंगे कि बिजली चली गई. ओके. कोल्ड एंड अम्ब्रेला, छाता. ओके, चलो. अब आपको नीचे दिए हुए सेंटेंसेस देखने हैं और उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट दी verbs. um okay. All right, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है. Put the verbs in the bracket into their proper forms. The first one is done for you. ठीक है. अच्छा, now I am taking अगर आपने स्पेशल क्लास ली होती, because I had done tenses in special classes, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी. All right, so do consider taking special classes at 11 a.m. 11:10 पे लेती हूँ मैं. 11:10 every morning. Okay, on the Unacademy app. ठीक है, चलो. Okay, now first किया हुआ है आपके लिए. Second, you have to do the traffic dash. The traffic stopped. Okay, the traffic stopped. Some people sat, past tense है सारा, on the road and they shouted. This is complete past tense. पूरा past tense में है. All right, now the next one. I wore, past tense, my raincoat. It rained. Okay, and it rained. नहीं, हाँ, it rained and people got wet. ठीक है, चलो next. She saw a film. She narrated. ये सब कुछ past tense में है. Narrated it to her friends who listened. Who listened, हाँ, carefully. Okay, we went. ये क्या है? Went to the exhibition. Some people bought, past tense, bought clothes while others played. All right, played. Now the class. Okay, the class is quiet. इसमें इसी आएगा. The class is quiet. Some children. Okay, sorry, was. पास्ट टेंस कर रहे हैं ना, तो ये भी पास्ट टेंस होगा. द क्लास वॉज क्वाइट. सम चिल्ड्रन रेड का रीड का रीड ही होता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. ठीक है, अगर आप रीड को प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में पढ़ेंगे तो वो सिर्फ रीड ही होगा. लेकिन अगर उसको पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, ओके, इफ यू प्रोनाउंस इट, तो वो हो जाएगा रेड. स्पेलिंग वुड बी सेम, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस करेंगे एज रेड. ऑलराइट. एंड द रेस्ट ड्रू. ड्रॉ का पास्ट टेंस है ड्रू. ऑलराइट, चलो. नाउ अब आपको कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि अलग अलग साउंड्स डिस्क्राइब करते हैं. ऑलराइट, नाउ यू हैव टू मैच द करेक्ट, यू हैव टू मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग. ओह, दिस विल बी फन. चलो. टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स. ट्रिप. ट्रिप. To make sound by hitting a surface repeatedly. Drum. To move quickly through the air, making a soft sound. Swish. Harsh sound made by birds. Caw. Ringing bell sound. It's tinkle. Tinkling of bell. सुना है ना? Tinkling of bell.
ओके, चलो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव। अब ये सारे वर्ड्स यूज करके आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, रमेश drums on his desk in impatience. Okay, yeah, is drumming. Okay, chalo. Rain water dashed from the umbrella all over the carpet. Rain water is dripping. या ड्रिप्स भी हो सकता था, वैसे आई एम डूइंग इट इज ड्रिपिंग। ऑलराइट, चलो। इन्होंने कहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करना है। ऑलराइट, द पोनी स्विश swishes its tail। पोनी क्या होता है? छोटा वाला। Okay, चलो। The dash of the breaking glass woke me up। The tinkle, the tinkle. The dash of the raven disturbed the sleeps. The caw of the raven, caw of the raven। Okay, now अब आपको ये phrases इसके अंदर यूज करने हैं। ओके, द एक्सरसाइजेस आर सुपर फन यार, बड़ी सही एक्सरसाइजेस है। ऑल राइट, चलो, आई एम लविंग दिस चैप्टर। ओके, आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड क्या था? एंड बिग इनफ, ओ सॉरी, एंड sure enough, kind enough, brave, colorful, big, foolish, serious, fair, anxious. Hmm. Big, kind, brave, sure, and sure enough. Yeah. Thick black clouds in the sky, and sure enough. Okay, chalo. The blue umbrella was colorful enough. Sorry, big enough. Big enough, because वो आगे कह रहा है कि ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए है, so big enough. All right. The butterflies are dash, are colorful enough. Okay, chalo. The lady was dash. The lady was to chase the leopard. The lady was foolish enough. Sorry, brave enough. Brave enough. Okay, lady brave थी ना, तभी तो leopard के पीछे भागी। Okay, so the lady was brave enough. Now, the boy was dash enough. The boy was anxious enough. Okay, let's do the another one. The man was kind enough. Kind enough. The victim's injury was serious enough. Serious enough. That person was dash enough. That person was, repeat this, foolish enough। क्योंकि वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी अ फूल कि वो दोबारा से सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट पर्सन वाज फूलिश इनफ। he told me he was sorry and he would compensate for the loss। I said fair enough। I said fair enough। ठीक है, अगर उनसे गलती हो गई है और वो लॉस पे कर रहे हैं, तो दैट्स फेयर इनफ। ऑलराइट, चलो, अब क्या बचा है? अभी बचा है boy was anxious। anxious बच गया है। anxious enough। ओके, ऑलवेज यूज दिस ट्रिक एज वेल इन योर एग्जाम्स। अगर आपको एग्जाम्स में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसका नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऑल राइट, दिस इज ऑलवेज द बेस्ट ट्रिक टू फॉलो। उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। वो जब आप बाकी के कर लोगे, देन उस पे आओ।
at times the answer automatically strikes your mind. Nahi aata hai, then just don't waste time. All right, chalo, let's move on now. Do you believe in superstitions? Why or why not? Work with your partner and write down 3 superstitions. Now, I believe in superstitions. No, I don't believe in superstitions at all. Because I feel that it's a matter of belief. ठीक है, अगर आप सोचते हैं, ओके, ओके, नाउ हियर लेट मी जस्ट टेल यू अ स्टोरी. ऑलराइट, क्या था कि यू नो माय मदर एक्चुअली believes this कि अगर कभी बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहां से जाना नहीं चाहिए. ओके, एंड आई ऑल्सो यूज टू बिलीव कि हाँ ठीक है, मम्मा बिलीव कर रहे हैं तो आई ऑल्सो यूज टू बिलीव. बट एक दिन क्या हुआ दैट आई वाज जस्ट इन अ हरी टू गो समवेयर, और द cat just crossed my path, and I was like कि अब मैं क्या करूं, खड़ी रहूं. And then I was like, okay, just let it be, because I was in such a hurry कि मैं इतनी जल्दी में थी. I was like कि अच्छा ठीक है, just let it be. और मैं वहां से चली गई, and nothing happened. Actually, nothing happened. ठीक है, तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैं इस तरह के सुपरस्टिशंस में बिलीव करना, आई जस्ट टोटली लेफ्ट. मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. आई जस्ट बिलीव कि अगर इट्स बेसिकली एनर्जी. ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आपके साथ बुरा होगा तो होगा, अगर आप सोचते हो कि आपके साथ अच्छा होगा तो अच्छा होगा. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा. ऑलराइट, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो आप इसमें क्या सोचते हैं आप वो लिख सकते हैं. ओके, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस. ऑलराइट, तो मेरे पास है नहीं कोई भी बताने के लिए. सो आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस. और क्यों नहीं बिलीव करती, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड. यू प्लीज डू इट. अगर आप बिलीव करते हैं देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शंस कि आप क्या बिलीव करते हैं. ओके, और क्यों बिलीव करते हैं वो भी बताना. ठीक है, किसने बताया था आपको वो चीज. Okay. How many different kinds of birds do you come across in the lesson? How many varieties do you see in your neighborhood? Are there any birds that you used to see earlier in your neighborhood but now not now? अच्छा, firstly lesson में हमें कितनी birds मिली है? We have got at least 2 to 3 kinds of birds. ठीक है, lesson के अंदर. Now in the neighborhood, yes, पहले ये गौरैया जिन्हें कहते हैं, स्मॉल जो बर्ड्स होती हैं, ये पहले बहुत ज्यादा दिखती थी. नाउ दे आर नॉट दैट मच. अभी वी आई एम टॉकिंग अबाउट माय नेबरहुड. मुझे नहीं पता आपके नेबरहुड में कितनी मिलती हैं. तो जितनी भी मिलती हैं जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, so मैं देख लेती. ऑलराइट, तो मेरे नेबरहुड में वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी अर्लियर, बट अभी नहीं मिलती हैं उतनी. तो अभी हमारे नेबरहुड में मुश्किल से वी गेट 2 to 3, सिर्फ इतनी ही मिलती है, नॉट मोर देन. एक तो जो नॉर्मल जो गौरैया जिसे कहते हैं वो है, वन इज पिजन्स. और उसके अलावा समटाइम्स आई गेट दीज, I don't know what the name is, but चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, and they have a orange color on their peaks. तो वो चीज वो मिलती है. So yeah, earlier I used to get more, at least पहले तो 5 से 6 मिल जाती थी. ओके, सो आपके नेबरहुड में क्या है, क्या सिचुएशन है, प्लीज डू लेट मी नो. ऑलराइट, नाउ monsoons are a great time, are a time of great fun and even a few adventures. Playing in the rain and getting wet, wading through knee-deep water on your way to the school, water flooding the house or the classroom, power cuts, and so on. Write a paragraph describing an incident that occurred during the rains which you can never forget. Now, ये एक्चुअली बहुत है कि मॉनसून्स होते हैं. तो मॉनसून्स में एक्चुअली मजा तो बहुत आता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन स्कूल में जब आप होते हैं तब एक्चुअली में बहुत मजा आता है. आई रिमेम्बर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. I think I was in class 8th or 9th, and
एज आई सेड आई ऑलवेज यूज टू कैरी अम्ब्रेला, तो मेरे पास अम्ब्रेला रहती थी हमेशा. बट दैट डे, यू नो, एज आई स्टेप डाउन फ्रॉम माई स्कूल बस, तो सडनली बारिश होने लगी. ठीक है, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड मुझे कि आई जस्ट स्टॉप्ड. मैंने अपना अम्ब्रेला नहीं निकाला. ठीक है, एंड आई वाज जस्ट ड्रेंचिंग इन द रेन. मैं एक्चुअली भीग रही थी. एंड व्हेन आई तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ. व्हेन आई रीच्ड होम, I was, sneezing. I was achoo achoo पूरा time. And then my mother was like, कि yes. तो my mother asked कि you always carry your umbrella, तो फिर अभी कहाँ गई? I said कि नहीं, मैं भूल गई. और मैंने वो umbrella चुपके से निकाल के just वहीं पे रख दी. And my mom was like कि ये ऐसा कभी होता तो नहीं है, you always carry your umbrella. And I was like कि नहीं नहीं, मैं भूल गई. So that was the incident. और मैं actually उसके बाद थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी. But that is the incident that I actually remember till now. तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट अगर हुआ है, then do write in the comment sections. एक दो लाइन फटाफट से लिख के मुझे बता दो. I would love to read them. ठीक है, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे स्टोरीज सुनने में. Okay, तो do write in the comment sections below. Okay, I'm reading all the comments. Okay, चलो. Now, some interesting words देख लेते हैं. First is heralded. हम इसके सेंटेंस बनाएंगे. ओके, अनाउंस्ड और ब्रॉट द न्यूज. ओके, शी heralded her retirement. Okay, she heralded her retirement. Now the next one, imprecations, curses. Um, mm, okay, imprecations are negative energies that one person transfers to other. Okay, one person transfers to other. Now, bloodletting, losing blood. Uh, mm, okay, martial art is a sport of bloodletting. Okay, bloodletting means थोड़ा सा blood lose होना. Okay, now drumming, falling noise. She came down drumming. Okay, she came down drumming. Now, next one. Disconsolately. What is this? Disconsolately means unhappy. She congratulated me disconsolately. Okay, she congratulated me disconsolately. Ravine Valley, uh, ravines are a beautiful sight after rains. ठीक है, ravines are a beautiful sight after rains. Now, caress, touching or holding lovely. Lovely. Okay. Um, she caress my hand in the hospital. Okay, chalo. Menins threaten. Uh, okay. The act of menace
menace can drop you in jail. ओके, अगर आप किसी को धमकाते हैं, डराते हैं, तो यू ओके, आपको जेल हो सकती है. ऑल राइट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे पीपल. आई एम देयर इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई एम सीइंग एंड कमेंटिंग यू पीपल. अभी तक तो पता चल गया होगा. ठीक है, चलो. That's it for today. All right, I will see you tomorrow at 3 p.m. Don't forget, I am always, every day at 11:10. I take classes, special classes. I take on the An Academy app. All right. और उसके साथ में on 3 o'clock हम यहाँ होते हैं on YouTube. All right. An Academy app पे I focus more on grammar. All right, I focus more on grammar there. वहां पे भी polls होते हैं, जैसे यहाँ menti होता है, वहां poll होते हैं. All right, so we will be doing that. All right, chalo. Now, it's goodbye from my side. All right, please do take a very good care of yourselves. Okay, till then we meet next time. Goodbye. Take care.